So today's topic is culture of India. So today we are going to start with a new topic, that is your culture of India. So basically the learning objective of this chapter is, by the end of this chapter you will able to learn, or you will come to know about the different types of clothes which we wear in India, food that we eat, then we have festivals that we celebrate all around India, and the different types of dances which every state has. Okay, every state has their own dance form. So these are the things which we are going to learn in this topic. So the four to five things which we will learn is your number one is your food. Second is your clothing. Then we will learn about your festivals which we celebrate. And then number four, dances. So these are the topics which we will learn in this video today. Okay, I hope you will enjoy while we will learn, and I will ask you some questions also, so that you will enjoy while we are studying. So my dear students, you all know that India is a diverse country, and here we have different type of people belonging to different religion, different caste, different creed. Okay, so according to that, or you can say because of this we have different culture in our India. So first of all we are going to cover the topic food. As you all know that India has a different type of soil present everywhere. ऊपर से अगर हम mountain area से start करते हैं, then we go to south. So we have different types of soil. As you know that in mountain area you have mountainous soil. Then उसके नीचे थोड़ी सी आप आ जाओगे, you will find alluvial soil that is very rich with fertility and very good for growing crops. Okay, then we have laterite soil, then we have red soil, then we have desert soil also. Okay, and we have black soil. So these are the different types of soil which you will find in India, and these soils are very good for growing crops. Like I have told you that alluvial soil is very good for growing crops. Some of the soils like black soil, which is good for growing cotton and all. Okay, right. So these are the soils according to soil, or you can say the different type of climate which is found in India, which is in India, and the type of soil, the availability of water, location. So according to this, different food, or you can say different food are available in different region of the of India. Okay, so food हर एक स्टेट में अलग अलग होते हैं. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ दाल भाती की, तो दाल भाती इज फेमस इन राजस्थान, राइट. तो ये अलग अलग स्टेट के कुछ फूड्स ऐसे हैं जो कि हमारे पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट के फेमस है. ओके, एंड देन वी हैव दिस Indian people use different types of spices in their food, different type of ingredient in their food. Okay, which makes that dish special in that region. Then we have different types of spices. We have grains, we have pulses, vegetables, fruits, oil seeds. So these things we will learn in this food topic, food. Okay, now नंबर वन, राइस जो है बेटा राइस हमारे इंडियंस का मेन फूड है. ओके, और यू कैन से मेन फूड ग्रेन है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाते हैं. देन वी हैव और भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम खाते हैं, जैसे कि है वीट, बाजरा, ज्वार. ओके, देन कॉर्न. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ you can say food crop which you will found in India, and
Indian people are very interested in eating all these things. Okay, then we have some of the oil seeds. You'll ask me, ma'am, oil seeds मतलब कैसे? Like oil seed is also important. अगर oil seed नहीं होंगे then how you'll able to cook your food? जो सब्जियां होती है, right? हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विदाउट ऑयल बॉयल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, बट वो हमारे इंडिया में नहीं है. दैट इज़ आउट ऑफ इंडिया. जो बाहर के जो विदेशी लोग हैं या फिर जो अदर कंट्रीज के लोग हैं, वो ज़्यादातर बॉइल्ड फूड खाना पसंद करते हैं. बट इंडियन पीपल आर लाइक स्पाइसी फूड ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, है ना. तो ऑयल्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक यू हैव मस्टर्ड ऑयल, सीसम ऑयल. सीसम ऑयल इज लाइक तिल, ठीक है, जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना तिल के, ये तो इनको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं इनमें से ऑयल, ठीक है. देन वी हैव कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल जो हम यूज़ करते हैं खाने के लिए. एंड देन वी हैव घी ऑल्सो, राइट. विदाउट ऑल दीज थिंग्स इंडियन पीपल ज़्यादातर अवॉइड करते हैं कि मतलब बहुत स्पाइसी खाना खाए, और ऑयल और घी बहुत ज़्यादा घी तो बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग, राइट. सो these are some of the you can see oil seeds which Indian people use, which we use in our food when we cook our food in a daily basis. Okay, then we have some common spices like turmeric. Then we have cloves, pepper, cumin seeds, coriander, cardamom, है ना. अब इनको हिंदी में जैसे कि हल्दी है, मिर्च है, धनिया है, अदरक है, लहसुन है ना. तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम अपने खाने में यूज़ करते हैं. एंड इनका टेस्ट अलग होता है. इट गिव्स अ डिफरेंट टेस्ट टू योर डिश. वट एवर डिश यू प्रिपेयर, अगर थोड़ी सी भी ये चीज़ें हम डाल देते हैं तो इट टेस्ट वेरी डिफरेंटली. वही खाना घर में अच्छा तो नहीं लगता है ना. कभी आप बीमार पड़ते हो तो मम्मा आप लोगों को क्या करते हैं, सिंपल सी खिचड़ी बना के दे देते हो. आप कहते नहीं, हमें तो नहीं खाना है, राइट. तो ये क्या है, टेस्ट, हमारा टेस्ट भी उसी तरह का डेवलप्ड हो जाता है, क्योंकि हमें वही तरीके का खाना एवरीडे हमें खाने को मिलता है, और खाने के बनाने के तरीके अलग होते हैं और टेस्ट भी अलग होता है, लेकिन चीज़ सेम ही होती है. ओके, सो दीज आर द. देन वी हैव सम वेजिटेबल्स तो आपको पता है, लाइक we have potatoes, brinjal, cabbage, right. Then we have fruits also which we eat according to the seasons also, like we have mango, apple, oranges, coconut. So these are the popular fruits which we eat. Okay, now special dishes, my dear students, there are very special dishes used, or you can say cooked in different parts of the country. So like I have told you about dal bhati, that is famous in Rajasthan. Then we have सरसों दा साग, मक्के की रोटी, मुंह में पानी आया ना सुन के. That is of Punjab dish. Okay, then we have ढोकला is from Gujarat. So गुजरात के लोग जो है ढोकला एंड थेपला जो डिश है उनकी उसमें बहुत फेमस है, ठीक है. Then we have this शमी कबाब, that is of उत्तर प्रदेश. Then we have बिरयानी, ओके, हैदराबादी बिरयानी जो आपके तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा फेमस है. आई नो आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा है सुन के, तो थोड़ी पानी को रोक के रखिए अपने मुंह का, ठीक है. देन वी हैव बापा इल्स, ठीक है. दिस इज अ टाइप ऑफ डिश विच यू विल फाउंड इन वेस्ट बंगाल, लाइक कोलकाता एंड ऑल. ये एक फिश की डिश है, तो ये आपके लिए न्यू है, मे बी आप लोगों ने खाई नहीं होगी, बट ट्राई दिस डिश. ओके, सो बेसिकली जो जितने भी डिशेज अभी मैंने आपको बताए हैं, ये अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सॉइल, द टाइप ऑफ क्लाइमेट विच आर फाउंड इन डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ये वहाँ पे बनते हैं. अब बात आती है, ऐसा तो नहीं है कि लाइक मुझे अगर बिरयानी खानी है तो मैं हैदराबाद ही जाऊँ या तेलंगाना ही जाऊँ, ऐसा तो नहीं होता ना. तो डिफरेंट स्टेट के लोग एक दूसरे के स्टेट में आते हैं, राइट, और आके वो वहाँ पे रहना भी स्टार्ट कर देते हैं ना. तो क्या होता है, फिर वो अपने वहाँ की डिशेस बनाना स्टार्ट करते हैं. ओके, आपने देखा होगा मोमोज आजकल, है ना, कितने ज़्यादा मतलब फेमस हो गए हैं. मोमोज है, देन यू हैव नूडल्स, देन यू हैव डोसा, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें जो है जो इंटर
स्टेट बनते हैं, एक दूसरे के स्टेट में बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके का, बिकॉज हमारे इंडिया में इतने सारे लोग रहते हैं, इतनी डिफरेंट वेराइटीज़ है हमारे इंडिया में कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर ट्रैवल्स भी करते हैं तो अगर वो दूसरे स्टेट में रह भी रहे हैं तो अपने स्टेट का जो भी उनका कल्चर है या फूड है, डिशेस है, वो नहीं भूलते, वो दूसरे स्टेट में कोशिश करते हैं कि वही फ्लेवर और वही तरीके से वो उस डिश को पेश करें, ठीक है, बनाए और फिर लोगों तक पहुंचाए, ठीक है। So these are my dear students, this was about your food which I have told you about oil seeds, about different types of dishes which are found in all over the, you can say, in India. Now the second topic which we will cover is your clothing. I am not writing much here because कुछ चीज़ ऐसी होती है, I don't think so कि लिखना ही ज़रूरी है, राइट। तो सुन लीजिए, अच्छी तरीके से सुनिए और अपनी बुक को भी फॉलो कीजिए, ठीक है। तो क्लोथ्स तो आप लोगों को पता है कि हर एक स्टेट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स पहने जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, राइट। अब जहाँ का क्लाइमेट जैसा होगा वहाँ पे लोग वैसे ही कपड़े पहनते हैं ना। अगर सर्दियाँ आ रही है, इफ विंटर्स आर कमिंग, राइट नाउ विंटर्स आर कमिंग, तो ये तो नहीं हो सकता ना कि हम क्या बोलते हैं ऐसे ही विंटर्स, बहुत ज़्यादा विंटर्स आ गए तो हम ऐसे ही एक कुर्ता पैजामा में रहेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बट वी विल वेयर वुलन क्लोथ्स जो हमें गर्मी दे, राइट। अब माउंटेन एरिया पे, कई माउंटेन एरिया पे ये होता है कि 24 आवर्स वहाँ पे ठंडी रहती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, राइट। गर्मियों में भी वहाँ पे ठंडी रहती है, तो वो चीज़ फॉलो करते हैं। तो हर एक स्टेट का अपना क्या बोलते हैं कपड़े पहनने का तरीका है, ठीक है। जैसे कि आप अगर हमारे नॉर्थ में जाओगे तो वहाँ पे लोग ज़्यादातर सलवार कुर्ता पहनना पसंद करते हैं, है ना, या फिर साड़ियाँ पहनना पसंद करते हैं, राइट। और आप अगर साउथ की तरफ को आओगे तो ज़्यादातर देखोगे लुंगी पहनते लोग, धोती कुर्ता जिसको हम बोलते हैं ना, या फिर वहाँ पे भी साड़ी वगैरह पहनते हैं, सलवार कमीज वगैरह भी पहनते हैं वहाँ पे, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स विच अकॉर्डिंग टू द state or according to the climate people wear and each state. And then we have occasional clothes also, right? During festivals we wear like traditional clothes. For example, अगर पंजाब का फेस्टिवल है लोहड़ी, ठीक है, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अच्छी तरीके से तैयार होते हैं, सलवार घेरदार वो पटियाला सलवार होती है ना, वो पहनते हैं, सूट पहनते हैं, अच्छी तरीके से अपने आप को ड्रेस्ड अप करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेडिशन, अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर, ओके। तो वो वैसे पहनते हैं। तो हर एक अलग अलग कल्चर के बेटा अलग अलग ड्रेसेस होते हैं, अलग अलग ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ड्रेसेस अलग अलग होते हैं, ठीक है। और भी कुछ ड्रेसेस उन्होंने दे रखी है, जैसे कि घाघरा चोली, you have सलवार कमीज, तो ये कुछ ड्रेसेस हैं। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखी है साड़ी भी पहनते हैं। साड़ी इज फेमस इन इंडिया, एक्चुअली में इंडिया का ट्रेडिशन ही है साड़ी, है ना। तो ज़्यादातर लोग अगर हम बाहर किसी कंट्री में जाते हैं तो अपने आप को ट्रेडिशनल ड्रेस जो हमारे कंट्री की साड़ी है उसी to हम पहन के अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं. लाइक देन वी हैव गिवन दिस धोती एंड कुर्ता. धोती एंड कुर्ता, this is also famous. Okay? So this is your different types of clothes which we wear in all over India. ठीक है. We have casual clothes also. जैसे आप घर में है, लाइक यूनिफॉर्म होती है ना, जब हम स्कूल जाते हैं तो हम पूरी यूनिफॉर्म में जाते हैं, लेकिन जब हम घर में आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने कंफर्ट लेवल के कपड़े पहनते हैं. हम नंबर से टी शर्ट पहन लिए, नीचे से लोअर पहन लिया, ट्राउजर पहन लिया, कुछ भी है ना. तो हम अपने जो ड्रेसिंग सेंस है वो हम अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग भी बदलते हैं. ठीक है. अगर हम ऑफिस जा रहे हैं, अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो हम उसी तरीके की क्लोथिंग पहनेंगे, लेकिन अगर हम घर में आ रहे हैं तो हम घर में घर की तरह की क्लोथिंग पहनेंगे. अब हम घर पे तो नहीं कर सकते ना टाई, एकदम से आराम से टाई वगैरह पहन के कोट पैंट पहन
अगर आप घर में हो, अगर आप घर में स्कूल के कपड़े पहन के रह रहे हो 24 घंटे, तो घर वाले भी कहेंगे क्या है, ड्रेस चेंज करो अपनी, है ना। जब आप स्कूल से घर जाते हो तो मम्मा आपको ये बोलती है ना, चेंज योर ड्रेस, राइट। तो ये क्या है, अलग अलग तरह के हमारे ड्रेसेस है जो हम चेंज करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर टाइम, अकॉर्डिंग टू आवर कंफर्ट, अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेडिशन, अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर, और अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेट्स। जिस स्टेट में जिस तरीके के कपड़े होते हैं वो वहाँ पे वैसे ही पहनते हैं। Then we have festivals. Festivals, so you all know we have different types of festival. As you all know that people in India belongs to different religion. So obviously we will celebrate all those festivals. Like you have Diwali. Diwali is the main festival of Hindu. Then we have Eid ul Fitr. ईद उल फितर जो है बेटा ये मुस्लिम के फेस्टिवल है, ठीक है। देन वी हैव क्रिसमस। क्रिसमस को हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। 25 दिसंबर का हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, सेंटा क्लॉज आएगा हमें गिफ्ट देगा, राइट। देन वी हैव गुरुपुरब। तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स है जो हम ऑल ओवर इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं। होली है, ठीक है। देन और भी सारे, ये तो हमारे जो वैसे फेस्टिवल्स है जो रिलीजियस फेस्टिवल है जो हम सेलिब्रेट करते हैं। देन वी हैव मोर फेस्टिवल ऑल्सो, दैट इज अ नेशनल फेस्टिवल, जिसे हम नेशनल फेस्टिवल बोलते हैं, ठीक है। नेशनल फेस्टिवल्स में हमारे बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं, जैसे कि आपका है 26 जनवरी यू हैव, देन यू हैव 15 अगस्त, देन यू हैव टीचर्स डे, गांधी जयंती, राइट, चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे में तो आप बहुत लोग खुश हो जाते हैं ना, टीचर्स आपको बहुत सारा प्यार करते हैं, कुछ नहीं बोलती है ना। तो ये सारे ये क्या हमारे नेशनल फेस्टिवल्स है जो मतलब ऑल ओवर इंडिया में तब छुट्टियाँ रहती है इन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने में, ठीक है। अब हम आएंगे बेटा, लास्ट टॉपिक है हमारा डांसेस। हर एक स्टेट का अपना अपना डांस है, ठीक है। अब हरियाणा का हरियाणवी डांस है ना। अब हरियाणवी सॉन्ग तो आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे। अब मैं गा तो नहीं सकती हूँ, लेकिन आपको पता ही है हरियाणवी सॉन्ग है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या हरियाणवी डांस होते हैं। फिर हमारा भरतनाट्यम जो हमारे तमिलनाडु में फेमस है ना। कथक जो है हमारा उत्तर प्रदेश में फेमस है, कथकली केरला में है, एंड कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये थे हमारे डांसेस जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके के हैं। पंजाब में आप देखोगे भांगड़ा फेमस है ना। असम में आप देखोगे बिहू फेमस है। उत्तराखंड में आप देखोगे गढ़वाली डांस ज़्यादा फेमस होता है, कुमाऊनी डांस ज़्यादा फेमस होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांसेस। अब ये मत करना कि मैं बोल रही हूँ, या स्टार्ट डांसिंग एट योर होम, ओके। ट्राई टू डांस, कथक करना सीखना, भरतनाट्यम करना सीखना, ठीक है। तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर। सो बेसिकली वी हैव लर्न अबाउट different types of food found in India, clothes people wear in India, then festivals which we celebrate in India, and dances, okay। तो ये सारी चीज़ें भूलना मत। Go through this video again and again if you don't understand it. If you have any query, just write a comment in a comment box, or you can leave a message. And be healthy, be safe at your home. Don't try to come out. अभी भी जो situation है वो अभी भी ठीक नहीं हुई है. So be safe, be healthy. Thank you and jai हिंद.